نیوز بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ بلدیاتی اداروں کی ٹرانزیشن مکمل ہونے تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہی نافذ رہے گا۔ نیا بلدیاتی ایکٹ نافذ ہونے پر بلدیاتی اداروں کی تعداد 456 اور یونین کونسلز کی تعداد 6500 سے تجاوز کر جائے گی۔ صوبہ بھر میں 30 ٹاؤن کارپوریشنز اور 207 میونسپل کمیٹیز تشکیل دی جائیں گی۔ نئے ایکٹ کے مطابق واٹر سپلائی اور سیوریج سروسز واسطہ اور لوکل گورنمنٹس کے تحت چلیں گی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کو حد بندیاں مکمل ہونے کے بعد نافذ کرنے کا فیصلہ۔ بلدیاتی اداروں کی ٹرانزیشن مکمل ہونے تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہی نافذ رہے گا۔ نیا بلدیاتی ایکٹ 2025 نافذ ہونے پر بلدیاتی اداروں کی تعداد 456 ہو جائے گی۔ نئے بلدیاتی قانون کے مطابق یونین کاؤنسلز کی تعداد 6500 سے تجاوز کر جائے گی۔ موجودہ قانون کے تحت یونین کاؤنسلز کی تعداد 4015 ہے۔ بلدیاتی ایکٹ 2013 میں بلدیاتی اداروں کی کل تعداد 229 تھی۔ نئے قانون کے نفاذ پر بلدیاتی اداروں میں 2 گنا اضافہ ہوگا۔ ایکٹ 2013 کے تحت 1 میٹروپولیٹن کارپوریشن، 11 میونسپل کارپوریشنز بنی۔ نئے ایکٹ کے تحت صوبہ بھر میں 30 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی۔ بلدیاتی ایکٹ 2013 میں میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 182 تھی۔ نئے بلدیاتی ایکٹ میں 254 میونسپل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ موجودہ ایکٹ کے تحت 35 اضلاع کاؤنسلز، تحصیل کاؤنسلز بنائی جائیں گی۔ صوبہ بھر کے 229 بلدیاتی ادارے عبوری دور میں جاری رہیں گے۔ نئے ادارے حد بندی کے بعد قائم ہوں گے۔ نئے ایکٹ کے مطابق ماسٹر پلانز پنجاب اسپیشل پلاننگ ایجنسی کے سپرد کیا جائے گا۔ واٹر سپلائی اور سیوریج سروسز واسا اور لوکل گورنمنٹس کے تحت چلیں گی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے ذریعے انجام پائے گا۔ پارکس اور ایڈورٹائزمنٹ ریگولیشن بڑے شہروں میں PHS کے پاس ہوں گے۔ دیگر علاقوں میں پارکس ایڈورٹائزمنٹ ریگولیشن لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوں گے۔ قبرستانوں کا انتظام لوکل گورنمنٹ اور شہر خاموشاں اتھارٹی کے تحت آپریشنل رہے گا۔ الیکشن کمیشن کا PP 289 ڈیرہ غازی خان کی خالی نشست پر انتخابی شیڈیول کا اعلان۔ محمود قادری خان کے استعفے کے بعد نشست خالی ہونے پر ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پبلک نوٹس 8 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ 10 سے 12 دسمبر مقرر کی گئی۔ نامزد امیدواروں کی ابتدائی فہرست 13 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 دسمبر کو مکمل کی جائے گی۔ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 22 دسمبر مقرر۔ ایپلیٹ ٹربیونل اپیلوں پر فیصلے 29 دسمبر کو سنائے گا۔ نظر ثانی شدہ امیدواروں کی فہرست 30 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ امیدوار دستبرداری کی آخری تاریخ اور حتمی لسٹ کی اشاعت 31 دسمبر مقرر۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 1 جنوری 2026 کو الاٹ کیے جائیں گے۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 25 جنوری 2026 بروز اتوار کو ہوگی۔ جنوبی پنجاب میں پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ان ایکشن۔ مظفر گڑھ، شاہپور سمیت مختلف شہروں میں سینکڑوں مقدمات درج۔ ادھر جزمان میں چالان کے ڈر سے شہری لائسنس بنوانے کے لیے خدمت مرکز پہنچ گئے۔ دوسری جانب بھکر میں مہنگے ہیلمٹ نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ مظفر گڑھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک ہی دن میں 320 مقدمات درج۔ پولیس نے 320 ملزمان گرفتار کر کے گاڑیاں و موٹر سائیکلز قبضے میں لے لی۔ پولیس ترجمان کے مطابق ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک ہی روز میں لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ ادھر بھاول نگر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ DSP ٹریفک اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ شہری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ٹریفک قوانین عوام کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوسری جانب لودھرا میں مزدور چوک کا دہاڑی دار طبقہ ٹریفک اور پیٹرولنگ پولیس کی کارروائیوں سے پریشان۔ مزدور طبقے کا کہنا تھا کہ چالان اور مقدمات کے خوف سے کام بند ہو گیا ہے، گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے۔ جبکہ شاہپور میں قانون کی پاسداری نہ کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن، ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، غیر نمونہ نمبر پلیٹ پر 139 مقدمات درج۔ پولیس تھانہ شاہپور صدر کے ناکے لگا کر گاڑیوں کی تلاشی بھی جاری ہے۔ ادھر یزمان ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے بعد لائسنس بنوانے کے لیے خدمت مرکز پر رش بڑھ گیا۔ شہریوں کی آسانی کے لیے موبائل پولیس لائسنسنگ یونٹ بھی یزمان اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ انچارج لائسنس مین محمد خالد کا کہنا تھا کہ شہری 5 منٹ میں اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ شہری اپنا اصل شناختی کارڈ اور بلڈ گروپ رپورٹ ساتھ لائیں۔ دوسری جانب ٹریفک وہیکل آرڈیننس 2025 کے عمل درآمد نے بھکر کے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ 1000 سے 1500 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 4000 روپے میں ملنے سے موٹر سائیکل سوار پریشان۔ شہری کہتے ہیں دہاڑی 800 روپے، ہیلمٹ خریدیں یا لائسنس بنوائیں۔
बहावलपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के बाद तलबा की मुश्किलात बढ़ गईं। ट्रांसपोर्टर्स का ओवरलोडिंग पर 15,000 जुर्माने के डर से तलबा को बिठाने से इनकार। लारी अड्डा पर तलबा और ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात के लिए आमने सामने आ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग पर 15,000 जुर्माने पर बहावलपुर के मरकजी लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर और तलबा आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों के डर से तलबा को बिठाने से इनकार कर दिया, जबकि तलबा ने भी ट्रांसपोर्टर्स को सबक सिखाने की ठान ली। तलबा के साथ बहसो तकरार करते हुए ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि भारी जुर्मानों के साथ तलबा के जत्थों को नथ डालने का भी कानून बनाया जाए। तलबा को बिठाने पर 15,000 का जुर्माना और ना बिठाने पर तलबा 30,000 मालियत की विंडो स्क्रीन तोड़ने पर उतर आए हैं। ये भी बैठे, हम भी रोजी करें, ओवरलोडिंग ना करें। ओवरलोड सीट पे सीट गाड़ी हो, जब छत भी भर जाती है, अंदर से भर जाते हैं। जो भी गाड़ी है इसको 20-20 तो मुलाजिम होते हैं। कभी भी चेक कर ले, सुबह के 8 बजे लेके 10 बजे तक 20-20 मुलाजिम होते हैं और 50% स्टूडेंट होता है। ट्रांसपोर्टर की तलबा को एक बस में 10 से 15 तलबा को बिठाने की यकीन दहानी भी काम न आई। दूसरी तरफ तलबा ने इंतजामिया से मखसूस बसें चलाने का मुतालबा किया है। तलबा का कहना है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी और SC कॉलेज की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है। इंतजामिया बताए खानका शरीफ, मुबारकपुर और अहमदपुर से आने वाले तलबा किस तरह बहावलपुर आए। हमारा ना लास्ट स्टॉप होता है तो अहमदपुर से स्टूडेंट चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारे पास गाड़ी आती है तो वो फुल होती है, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। अब यही गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ इंतजाम किया जाए ताकि हमें भी परेशानी ना हो। बस हम क्या कह सकते हैं कि मरीम नवाज को चाहिए कि हमारे लिए एक अलग सा एक इंतजाम करें स्टूडेंट के लिए। हम तो रोजाना ही ऐसे जलील होते हैं। बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर नवाही शहरों से हजारों की तादाद में तलबा शहर का रुख करते हैं। तलबा की आमदोरफ्त के लिए पॉलिसी तरतीब न दी गई तो लड़ाई झगड़ों के वाकयात में इजाफा होने का खदशा है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का मामला। IG पंजाब की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को इरसाल। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 16 साल के बच्चों के लाइसेंस के इजरा के लिए सेक्शन 4 में तरमीम की जाएगी। 16 से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर मनसूख हो जाएगा। 18 साल की उम्र के बाद लाइसेंस रेवेन्यू या नया बनवाना पड़ेगा। तरमीम में मंजूरी के बाद बच्चों को मोटरसाइकिल का लाइसेंस का इजरा शुरू हो जाएगा। समरी DIG ट्रैफिक वकास नजीर की जानिब से तैयार करके IG पंजाब को भिजवाई गई थी। मुल्तान के वकला बिहाड़ी में वकील ज़ीशान शबीर ढड्डी के मुबैना कत्ल पर सरापा एहतजाज। हाईकोर्ट बार समेत पंजाब भर की बार्स में आज भी हड़ताल, अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही। सदर हाईकोर्ट बार अजहर मुगल का कहना था कि ज़ीशान शबीर के कातलों को मुआफ नहीं करेंगे। मुल्तान में बिहाड़ी के वकील ज़ीशान ढुड्डी के कत्ल के मामले पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर हाईकोर्ट बार मोहम्मद अजहर खान मुगल का कहना था कि हाईकोर्ट बार समेत तमाम बार्स में आज मुकम्मल हड़ताल रही। वो ज़ीशान शबीर के कातलों को माफ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में भी वकील ज़ीशान ढुड्डी के कत्ल पर वकला का शदीद एहतजाज जारी। पंजाब भर की बार्स में आज भी हड़ताल, अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही। वकला ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि तमाम वकला बिहाड़ी बार के साथ एक आवाज होकर खड़े हैं। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। पंजाब में 38,71,240 मैट्रिक टन करने की क्रशिंग मुकम्मल। शुगर मिल्स 2,83,935 मैट्रिक टन चीनी तैयार कर चुकी हैं। केन कमिश्नर अमजद हफीज के मुताबिक किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर कार्रवाई की गई। नई चीनी की पैदावार से एक्स मिल कीमत 159 से 162 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में चीनी 168 से 179 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मजीद बताया कि चीनी मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 3,952 गिरफ्तार कर लिए, 5,88,66,000 जुर्माना आयद किए गए। शुगर मिल्स में क्रशिंग अरूज पर माफिया ने शहरियों को क्रश करना शुरू कर दिया। चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक बढ़ने से शहरी परेशान। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरी कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरों ने अवाम की जेबों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है।
जहानिया में चीनी की कीमतों में होने वाला इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गया। एक तरफ शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन अरूज पर है, गन्ने से भरे ट्रक और ट्रालियां मुसलसल मिलों का रुख कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में चीनी की दस्तयाबी कम और कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि अगर मिलों में पैदावार बढ़ रही है तो कीमतों में कमी आनी चाहिए थी, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। दुकानदार चीनी 250 रुपए फी किलो तक बेच रहे हैं और किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से 175 रुपए मुकर्रर है, लेकिन 175 रुपए फरोख्त नहीं की जाती। चीनी 220 से 250 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं जो करना है कर लो, और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है इसको रेट को कंट्रोल किया जाए। अवामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीनी का मसनूई बहरान खत्म करके कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि शहरी इस बेलगाम महंगाई से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। जनूबी पंजाब इंतजामिया तजावुजात, गैस रिफिलिंग सेंटर्स और कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म। मुल्तान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने गुलगर्स बाटा चौक से मुबीन मार्केट चौक से तजावुजात का खात्मा कर दिया। उधर लोधरा में मुतादिद गैस रिफिलिंग गोदाम सील कर दिए गए। दूसरी जानिब लिया में पेरा फोर्स ने 38 एकड़ से ज्यादा अराजी वागुजार करा ली। मुल्तान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्शन। गुलगश्त बाटा चौक से मुबीन मार्केट चौक को क्लियर कर दिया। इंक्रोचमेंट अमले ने दुकानों की हदूद से बाहर मौजूद सामान को तहवील में ले लिया। उधर लोधरा में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामिया गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ इन एक्शन। ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर पर मुश्तमिल टास्क फोर्स की कार्रवाइयां। दूसरी जानिब लिया में पैरा फोर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। चक 172 और जुम्मन शाह में ऑपरेशन के दौरान 38 एकड़ से ज्यादा अराजी वागुजार करा के मालिकान के हवाले कर दी गई। जबकि टंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार अलीपुर रोड और सदवाली रोड से तजावुजात का खात्मा ख्वाब बन गया। दुकानदारों और रेडी बानों ने मसरूफ शाहराहों पर कब्जा जमा लिया। शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। तहसील इंतजामिया और पैरा फोर्स तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने में नाकाम। उधर डेरा गाजी खान में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का डीसी ऑफिस में अहम मीटिंग। इजलास में 49 केसेस की समाअत 27 के फैसले कर दिए गए। कब्जा माफिया से जायदादें वागुजार कराने की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। काबिज माफिया से जायदादें वागुजार कराकर असल मालिकान के हवाले की गईं। पेरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वजीर आला का पेरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। पेरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पेरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर मुकम्मल ब्रीफिंग। नए फैसले में किए गए हर शहरी के लिए महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पेरा फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज की स्टेट ऑफ द आर्ट पेरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि कानून हर हाल में नाफिज, मगर आवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत होगा। पेरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नजायज पर तवज्जो दी जाए। कानून जरूर नाफिज किया जाए, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। 5 दिसंबर रजाकारों का आलमी दिन। एक तरफ खिदमत का सफर जारी तो दूसरी जानिब सिविल डिफेंस के रजाकार कई माह की तनख्वाहों से महरूम। उन्हीं में एक 73 साल रजाकार अल्लाह बख्श हैं, जिसकी जवानी खिदमत करते ढल गई, लेकिन जज्बे आज भी जवान हैं। मुल्तान में सिविल डिफेंस के 239 रजाकार गुज़िश्ता 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। इन्हें मुल्क व कौमी खिदमत करता 73 साल मलिक अल्लाह बख्श भुट्टा भी हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद इसके जज्बे आज भी जवां हैं। सीनियर रजाकार का कहना है कि 1965 की जंग में पाक अफवाज के दस्तों को देखकर मुल्क व कौमी खिदमत का जज्बा पैदा हुआ। 1965 की जब जंग लगी तो मेरा एक जज्बा था फौज को देखते हुए और ये वॉलंटियर को उस वक्त देखते हुए कि मैं भी एक रजाकार बनूं या मैं यूनिफॉर्म पहनूं। तो मैं तकरीबन 14 साल मेरी उम्र थी, तो मैं वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस के थे इनकी खिदमत करता था। इनके लिए उस वक्त एक जज्बा था। लोग घरों में जो है ना चीज़ें देते थे, वॉलंटियर के लिए खाना देते थे, दूध देते थे, खुश्क दूध देते थे, चाय बना के देते, तो मैं घरों से लेके आके इन वॉलंटियर की खिदमत किया करता था। तनख्वाहें न मिलने के बावजूद रजाकार आज भी सैलाब बहाली प्रोग्राम में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। माली मसाइल से 2-4 रजाकार तनख्वाहों के लिए इंतजामिया की तरफ देखने लगे हैं। मेरी 73 साल उम्र हो गई है और मैं बहैसियत वॉलंटियर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अमन हो, ज़माना अमन हो या जंग हो, तो हम हमा वक्त ये सिविल डिफेंस के रजाकार हर वक्त तैयार हैं और कौम के लिए शाना बिशाना पाक फौज के साथ खड़े हैं। और
जब पाक फौज हमारी बॉर्डरों पे लड़ती है तो यहाँ का जो सिस्टम है वो सारा सिविल डिफेंस के पास आ जाता है। अल्लाह बख्श भुट्टा जैसे रजाकारों ने पूरी जिंदगी मुल्क व कौमी खिदमत में गुजार दी। इसके बावजूद वो गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों के इंतजार में है। इंतजामिया तवज्जो देकर ये मसला हल करे ताकि ये रजाकार मुल्क व कौम की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मार इमरान के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी रजाकारों का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीबात में रजाकारों की खिदमत को खैराज तहसीन पेश किया गया। एक तरफ पंजाब गर्ल्स कॉलेज में तालबात ने परफॉर्मेंसेस के जरिए रजाकारों की अहमियत उजागर की, तो दूसरी जानिब सिविल डिफेंस ऑफिस में रजाकारों के एजाज में खुसूसी तकरीब सजाई गई। रजाकारों के आलमी दिन पर मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। पंजाब गर्ल्स कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में रजाकारों के आलमी दिन की मुनासबत से तकारीर, नज़में और टैबलोज पेश किए गए, जिनका मकसद नौजवान नस्ल में समाजी खिदमत के जज्बे को फरोग देना था। एडिटर रोही, डॉक्टर अमजद बुखारी, डायरेक्टर पंजाब कॉलेज उसामा बशीर और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने मुआशरे में रजाकारों की अहमियत और खिदमत को सराहा। उनसे शुक्र तो सारे अदा कर लेते हैं। शुक्र अदा करने का जो असल तरीका है वो ये है कि जो कुछ आपको दिया गया है आप उसको तकसीम करके आप देखो कि कहीं और किसी और को उससे ज्यादा जरूरत तो नहीं है। अगर तुम ये करते तो मैं मानती कि तुमने शुक्र अदा किया है। हम सब जिंदगी में रजाकार ही हैं। ये वॉलंटियर्स को हम उर्दू में रजाकार कहते हैं, तो रजाकार हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर वो खिदमात हम जो है बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के अंजाम देते हैं तो ये रजाकारी हो जाती है। असातिज़ा ने अपने खिताब में कहा कि रजाकार माशरे का वो रोशन चेहरा है जो बिला मुआवजा इंसानियत की खिदमत करते हैं। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम नौजवानों में खिदमत खल्क के जज्बे को परवान चढ़ाते हैं और इन्हें समाजी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं। वॉलंटियर्स डे के मुनासिबत से जमा हुए हैं, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की खिदमत करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अजीम इबादत है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि दूसरों की मदद करना, मुआशरे को बेहतर बनाना, बगैर किसी लालच की खिदमत करना सबसे बड़ा कार्य खैर है। शुक्र है कि हम उस रब के मानने वाले हैं जिसने खिदमत खल्क को अजीम इबादत बनाया। मुल्तान के सिविल डिफेंस ऑफिस में भी रजाकारों के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब सजाई गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद का इस मौके पर कहना था कि रजाकार ही वो कुव्वत है जो दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। जो है मनाने का वो ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये ओवरऑल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, पंजाब में सारे हमारे बहुत तेजी से काम हो रहा है और इनको असल मकसद हमारा मनाने का ये है कि हम इनको खराज तहसीन पेश करें। हम इनको अपने वॉलंटियर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने अंत तक मेहनत से अपने जो फ्लड जो आया उसको बड़ा अच्छे तरीके से डील किया। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना घर बार देखा, ना बच्चे देखे। तो असल में ये इनकी खिदमात को सलाम है। तकरीब के शुरका का मानना था कि आज खराज तहसीन पेश करने के साथ तजदीद अहद का भी दिन है कि रजाकार अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत की खिदमत जारी रखेंगे। दोनों तकरीबात में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि रजाकाराना जज्बा ही एक महफूज और मुस्तहकम माशरे की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हसन मलिक के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम 2 की पेशरफ। सूबा भर में 31 स्कीम्स मुकम्मल, 41 पर काम जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सोहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत इजलास में CNW अफसरान की सूबाई वजीर मलिक सोहेब अहमद भर्त को ब्रीफिंग। मियांवाली समेत दीगर इजला में 31 शाहराहों को मुकम्मल कर दिया गया। DG खान डिवीजन के इजला में काम तेजी से जारी। सूबाई वजीर सोहेब अहमद भर्त ने 41 स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला के नए DPOs ने चार्ज संभाल लिया। DC भक्कर की तमाम महकमाजात के सरबराहान से तारुफी मीटिंग कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। उधर कोटद्दू का डिप्टी कमिश्नर फिर तब्दील, तोकीर इलियास सीमा का तबादला मनसूख, बिलाल सलीम का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब खानेवाल की नई डिप्टी कमिश्नर मलिहा राशिद ने जिले अफसरान और DC दफ्तर के मुलाजमीन से तारुफी मुलाकात की। भक्कर के नए डिप्टी कमिश्नर एहसानुल्लाह जमाली ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। DC ने तमाम महकमाजात के सरबराहान से तारुफी मीटिंग की और उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल भक्कर का विजिट किया और मरीजों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। उधर कोट अद्दू का डिप्टी कमिश्नर फिर तब्दील, तौकीर इलियास सीमा का तबादला मनसूख। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस बिलाल सलीम को डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू तैनात कर दिया गया। बिलाल सलीम की बतौर DC कोट अद्दू तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब खानेवाल में नई तैनात डिप्टी कमिश्नर मलिहा राशिद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जिले अफसरान और डीसी दफ्तर के मुलाजमीन से तारुफी मुलाकात भी की। इससे कबल मलिहा राशिद एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन लोकल गवर्नमेंट खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। राजनपुर के साबिक और मौजूदा डीपीओज ने रुझान के कच्चा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस चौकियों का दौरा, जवानों से मुलाकात की और ड्यूटी का जायजा लिया। डीपीओ मोहम्मद इमरान और फारूक अमजद ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया, जबकि बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर की पेशा वराना सलाहियतों, इंतजामी अमूर और अवामी खिदमात को सराहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने कहा कि जिला बिहाड़ी में फराइज सर अंजाम देना मेरे लिए एजाज और बायस मुसरत रहा। जिला बिहाड़ी से खुशगवार यादें लेकर रुखसत हो रही हूँ। जिले में तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना मिशन रहा। एमडी पैप शाहिद फरीद का नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस सलारपुर पीरवाला का दौरा, स्कूल में सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर स्कूल एजाज अहमद से डेवलपमेंट बारे ब्रीफिंग ली। एमडी पैप ने स्कूल में सेकंड शिफ्ट के आगाज की भी हिदायत कर दी। एमडी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन शाहिद फरीद की नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जलालपुर पीरवाला आमिर स्कूल के क्लास रूम्स, जदीद कंप्यूटर्स लैब, तजर्बाती लैब्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर स्कूल एजाज अहमद ने एमडी पैफ को जदीद डेवलपमेंट बारे ब्रीफिंग दी और स्टाफ का तारुफ भी कराया। एमडी पैफ शाहिद फरीद ने इस मौके पर स्कूल में नए एडमिशन की तादाद बढ़ने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तादाद बढ़ने पर स्कूल में सेकंड शिफ्ट के आगाज की भी हिदायत कर दी है। एमडी पैफ का कहना था कि अपग्रेडेशन का आगाज हो गया है, अगले साल स्कूल मजीद बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल में इस इलाके के बच्चों को वो तालीम मैसर होगी जो तालीम जरूरी है उनको मुस्तकबिल में कामयाब करने के लिए। यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर लैब्स बनाई हैं उसमें बेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। साइंस लैब है, स्टेम लैब जो है वो अगले 4 से 5 दिनों में रोबोटिक्स और उसकी लैब बन जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर पैफ मुल्तान अदनान रब नवाज, डायरेक्टर नवाज शरीफ स्कूल एजाज अहमद, मैनेजर स्कूल नजमा आशिक और एडमिन स्कूल जावेद मेो समेत दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर स्कूल को कामयाब बनाने के इरादे का इजहार किया। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फ्राहम करने का मिशन वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर पुलिस हुकाम तलबा को आगाही देने के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिला में डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क ने डिविजनल पब्लिक स्कूल मियां चन्नू का विजिट किया, जबकि डीएसपी मोहम्मद इमरान ने कोट सुल्तान में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा को आगाही फ्राहम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब के अहकामात पर तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी। डीपीओ खानेवाल इस्माइल खड़क ने इस हवाले से डिविजनल पब्लिक स्कूल मियां चन्नू का दौरा किया, जहां उन्होंने तालिबात को हेलमेट के इस्तेमाल और रोड सेफ्टी बारे आगाही दी। डीपीओ का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके जिंदगी महफूज हो सकती है। उधर कोट सुल्तान में डीएसपी मोहम्मद इमरान ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का विजिट किया। उन्होंने तलबा को ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने और हेलमेट की अहमियत बारे आगाही फराहम की। डीएसपी का कहना था कि आप हमारा मुस्तकबिल हो और आपकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि आपकी जान महफूज रहे। आखिर में कॉलेज प्रिंसिपल खुर्शीद अहमद खान दस्ती ने डीएसपी मोहम्मद इमरान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तलबा को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम की। उन्होंने मुतालबा किया कि तलबा की आसानी के लिए लाइसेंस वैन कॉलेज भेजी जाए। वर्ल्ड सॉइल डे पर नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सेमिनार कहने का ज़रई माहिरीन का सेमिनार के शुरका से खिताब में कहना था कि ज़मीन की जरखेज़ी बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसके लिए फलदार दरख्त उगाए जाएंगे। ज़मीन जितनी जरखेज़ होगी पैदावार उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। वर्ल्ड सॉइल डे पर जमीन को जरखेज बनाने का अज़म। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मिट्टी की जरखेजी के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड इन्वायरमेंट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में माहिरीन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि जमीन बेहतर होगी तो ही पैदावार बेहतर होगी। हमें जरखेजी बढ़ाने, दरख्त लगाने और नई जमीन आबाद करने की जरूरत है। फूड सिक्योरिटी जरखेज जमीन से वाबस्ता है। हमें अपनी सॉइल को हेल्दी रखना है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा और इन टर्म्स ऑफ एडिंग जो जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ, ताकि जब जो उन पे क्रॉप्स उगाई जाएं वो इस तरह की बायो फॉर्टिफाइड हों कि शहर के लोग हेल्दी रह सकें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो। ज़रई साइंसदान डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि जमीन जितनी अच्छी होगी जिंदगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ज्यादा खुराक पैदा करने के लिए बेहतर जमीन जरूरी है। फूड सिक्योरिटी है ना हमारी,
دنیا کی یا پاکستان کے لیے یہ ڈائریکٹ لنک کرتی ہے سوائل کے ساتھ. اگر زمین اچھی ہے تو آپ کی کراپس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، اور اگر زمین خراب ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی. اس لیے زمین کا خیال رکھیں. ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے فصل کی باقیات نہ جلائی جائیں، کھادوں کا متوازن استعمال کیا جائے اور کاشت سے پہلے مٹی کا تجزیہ ضرور کروانا چاہیے. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان.